These are very, very important examples, means NCRT examples of class 9th mathematics, chapter 7, that is triangle. This is very first example of your book, and it is in the given figure, it is given OA is equal to OB and OD that is equal to OC, and then we have to show, means we have to prove that triangle AOD is congruent to triangle BOC and AD is parallel to BC. How to do? First we write given. In the figure, it is given OA is equal to OB and OD is equal to OC. It is given in the question. And to prove triangle AOD is congruent to triangle BOC, this is the first part. And second part is AD is parallel to BC. ये दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं और ये आपके क्वेश्चन में ही गिवन है। फिगर आपके क्वेश्चन में है, गिवन भी आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही है और टू प्रूव भी आपके क्वेश्चन में ही है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ। इन ट्राइंगल एओडी एंड बीओसी जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, हम उन्हीं ट्राइंगल को जनरली लेते हैं। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास अब 4 रूल हैं, एस ए आर एच एस एस। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये गिवन है। दिस इज ओ ए is equal to OB. It is given in the question. And second, OD is equal to OC. It is also given. This is OD is equal to OC. And you will see that this is vertical opposite angles. AOD is equal to angle BOC. And AOD is equal to angle BOC. आपको रीजन लिख देना चाहिए in the bracket right hand side. Form a pair of vertically opposite angles. तो देखिए साइड एंगल साइड और दिस साइड साइड एंगल साइड, इनको सेम मार्क सेम सिंबल दे देना चाहिए। देखिए ये 1 क्रॉस मींस ये इसके इक्वल है, ये डबल क्रॉस इसके इक्वल है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल है। देन वी राइट ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए AOD means single cross, vertical opposite angle and double cross. See, single cross, vertical angle and double cross AOD। इसी तरह से इस ट्राइंगल में भी लिखना पड़ेगा BO single cross, vertical opposite angle and double cross. So we have to write here ट्राइंगल BOC। आप किसी दूसरे ऑर्डर में नहीं लिख सकते हो, अगर आप लिखेंगे देन दैट विल बी रॉन्ग। First part is proved. Now for the second part. By CPCT we can write, since the two triangles are congruent, so we can say, so angle OAD is equal to angle OBC. OAD means this one angle, this angle is equal to this angle. मैं मार्क कर देता हूं यहां पे। This angle is equal to this angle. But you will see here that these are two lines, AB and AD, and these are alternate interior angles, and this is transversal. When a transversal joins two lines and alternate angles are equal, then the two lines are parallel. That is why AD is parallel to CB or BC. And these form a pair of alternate angles for line segment AD and BC. That is why
वी कैन से एडी इज पैरेलल टू बीसी जब कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को ज्वाइन करती है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होती है। ट्रांसवर्सल को छोड़ दीजिए, लिविंग दिस लाइन। देखिए ये लाइन और ये लाइन एडी दो लाइन है, इनको ए बी लाइन ज्वाइन करती है और ये एंगल एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। तो अब आप ए बी लाइन को आप छोड़िए तो दो लाइंस बची है आपके पास, एक सी बी और ए डी। ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लाइन यू कैन से लाइन सी बी और यू कैन से लाइन बी सी, डज नॉट मैटर। एंड प्रूव्ड सेकंड पार्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Example number 2, AB is a line segment and line L is perpendicular bisector of it. If point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. इसको हम विजुलाइज करने के लिए एक मैं फिगर बनाता हूं। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एल इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी कोई पॉइंट है, तो मैं पहले एक पॉइंट पी लेता हूं। देखिए ये एक लाइन है एल और ये जो लाइन है ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस दिस पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये बाइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। Perpendicular means this angle is 90 degree, this angle is also 90 degree, means you can say that this line L is perpendicular bisector of AB। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन L है वो AB के मिड पॉइंट से पास होती है, मींस C पॉइंट AB का मिड पॉइंट है, नंबर वन। एक परपेंडिकुलर, एक यहाँ पे एक और वर्ड दे रखा है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। और ये फिर क्या हुआ, इस एल पे एक पॉइंट पी है, कहीं भी ले सकते हो। इस पी का डिस्टेंस ए से और इस पी का डिस्टेंस बी से इक्वल होगा। पी इज इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस कहां से, ए से और बी से, मीन्स आपका डिस्टेंस पी ए और पी बी दोनों इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। सिस्टेमेटिकली लिखते हैं, कैसे हम इसको एग्जाम में लिखेंगे। Given in the figure, line L is perpendicular of AB and passes through C, which is the midpoint of AB। दो बातें हो गई, देखिए परपेंडिकुलर भी हो गया और मिड पॉइंट से पास होने का मतलब ये हुआ कि ये बाइसेक्टर भी है। लाइन L, दिस लाइन L। टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB, जब कोई दो साइड इक्वल प्रूव करनी हो या एंगल इक्वल प्रूव करनी हो तो जनरली हम हेल्प लेते हैं सीपीसीटी का, और सीपी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। लेकिन सीपीसीटी के लिए पहले दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, और कॉन्ग्रुएंट सी रूल्स में चार रूल्स आते हैं। देयर आर फोर रूल्स टू प्रूव टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दैट इज एस ए ए आर एच एस एंड एस एस एस। इन चारों में से ही कोई एक रूल अप्लाई यहाँ पे होना है। प्रूफ, इन ट्राइंगल पीसीए एंड पीसीबी, ये रहा पी सी ए, एक ट्राइंगल हुआ। सेकंड ट्राइंगल पी सी बी, ये दो ट्राइंगल है और हम चाहेंगे कि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। ए सी इज इक्वल टू बी सी ए गिवन है क्योंकि सी मिड पॉइंट है, गिवन है। पी सी ए इज इक्वल टू पी सी बी, ये 90 डिग्री है और ये भी गिवन है।
और एक साइड कॉमन है, देखिए कौन सा, PC इज इक्वल टू PC, दैट इज कॉमन साइड. You can say here that this equal to this is common, this is 90 degree and this is also 90 degree. So by the rule, triangle PCA is congruent to triangle PCB by the rule SAS congruency rule, side angle side congruency rule. Biciplicity apply करिए. So PA is equal to PB. What is the reason? Biciplicity. और यही हमें प्रूव करना है. We have to prove here PA is equal to PB और ये हम प्रूव कर चुके हैं. That's all for this question. Example number 3. A line segment AB is parallel to the line segment CD. This point is C. This point is C. O is the midpoint of AD और ये O है AD का midpoint है. Show that triangle AOB is congruent to triangle DOC and second, O is the midpoint of BC. Yes. We have to start here. What is given? In the figure, AB is parallel to CD, it is given. And OA is equal to OD क्योंकि O AD का midpoint है. That is why OA means here to here OA is equal to OD. It is given in the question. And what to prove? यही prove करना है जो यहाँ पे लिखा है. This is given in the question. Triangle AOB is congruent to triangle DOC and O is the midpoint of BC. इसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा हमें. कौन से ट्राइंगल्स को? एक तो हम ट्राइंगल लेते हैं ये और एक हम ट्राइंगल लेते हैं ये. ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी. इसी ऑर्डर में लेना है. ये सीओडी नहीं लिख पाएंगे, आपको लिखना होगा डीओसी ओनली. प्रूफ देखिए. इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी यही ट्राइंगल लेंगे. देखिए आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी. देखिए एओ और डीओ इक्वल है, गिवन है. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. एओबी इज इक्वल टू एंगल 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 सीओडी. और ये जो एंगल है मैं ये भी लिख देता हूं यहां पे. दिस एंगल is equal to this angle, vertical opposite angle, because it is given that AB and CD are two parallel lines. और ये अल्टरनेट एंगल है और ये एंगल ये भी अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है. सी आप कुछ भी ले लीजिए. तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BCO. ABO because these are alternate angles, because AC is parallel to CD and BC is transversal.
सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। फिगर में देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, लिख दीजिएगा रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एक साइड इक्वल गिवन है, कौन सी वाली, OA इज इक्वल टू OD एंड दिस इज गिवन। आपको दो चीज तीन चीज मिल चुकी है, देयरफॉर ट्राइंगल AOB। अब लिखते वक्त बहुत ही प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। ए ओ देखिए AOB सिंगल एंगल में सिंगल लाइन वर्टिकल अपोजिट डबल एंगल, इसी तरह से सिंगल क्रॉस वर्टिकल अपोजिट डबल एंगल लिखना होगा आपको। DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC बाई AAS रूल। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। Our first part is proved, triangle AOB is congruent to triangle DOC. And now by simplicity, OB is equal to OC, OB second third, simplicity लिख दीजिए, रीजन simplicity हुआ। और अगर OB और OC इक्वल है, देखिए OB और OC इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ द मीनिंग ऑफ दिस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और इसका मीनिंग भी यही हुआ कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड इट इज प्रूव्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। very important theorem, angles opposite to equal sides of an isosceles triangles are equal। ये हमें प्रूव करना है। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? देखिए एक ट्राइंगल है ABC, और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये A है और इससे हमने ट्राइंगल बनाया, और AB और AC इक्वल है, ये इक्वल है। व्हाट इज गिवन in the figure an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, ये जो AB है this is equal to AC। प्रूव क्या करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ध्यान से देखिए 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 देखिए, ये साइड AB है और इसके अपोजिट, अपोजिट मीन बिल्कुल सामने वाला एंगल C है, और ये साइड AC है, इसके जस्ट अपोजिट एंगल B है। हमें यह प्रूव करना है कि जो टू साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स मींस उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंड वी रीड एज एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। If two sides of a triangle are equal, then its opposite sides are also equal. We have to prove it. इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। देखिए यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ये मैंने परपेंडिकुलर सॉरी एंगल बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ड्रॉ हमने किया, और ये जहां भी मिला उसको हमने D कहा। वापस देखिए क्या किया, एंगल A का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। देखिए ऐसे, ये एंगल इक्वल, और जहां भी ये BC को मिलता है उस पॉइंट को हमने D नाम दिया। करिए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड लेट D बी द पॉइंट of intersection of this bisector of angle A and BC।
अब हम चाहेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स को, मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। वी हैव फोर रूल्स, SAS, ASA, RHS, SSS। वन बाय वन प्रूफ। In triangle BAD and triangle CAD. BAD means BAD, this triangle first. And other is triangle CAD second. ये दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे और देन वी विल बी अप्लाइंग CPCT, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। लेकिन इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे? सी, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन ही है, लिख गया। राइट हैंड साइड ब्रैकेट में हम लिखते हैं ये क्यों इक्वल है, बिकॉज इट इज गिवन। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि जो AD है वो एंगल A को का बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और एक और चीज इक्वल है, AD इज कॉमन। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है। देखिए ये कॉमन है, तो by side, angle and side, by side, angle and side, the two triangles are congruent. So triangle BAD is congruent to triangle CAD by SAS rule, and by CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, और एंगल ABD को आप B भी कह सकते हो और ACD को एंगल C भी कह सकते हो। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड दिस इज प्रूव्ड। Very important theorem. That's all for this theorem. Very, very important. Exercise 7.2 इस थ्योरम पे बेस्ड है। Very important theorem. Theorem number 7.3. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. ये प्रूव करना है किसी ट्राइंगल में कि अगर टू एंगल्स इक्वल है किसी ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, और अगर अपोजिट एंगल्स हैं तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होगी। देखिए क्या गिवन है इन द फिगर। अब फिगर में ड्रॉ करूंगा। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। अभी फिगर में फिर से ड्रॉ करूंगा, और ए बी और ए सी इक्वल है दो इस फिगर में, और हमें कंस्ट्रक्शन ये करना है। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ट्राइंगल ABC है, ये देखिए, और उस ABC में एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि इन एंगल्स के अपोजिट साइड, इनके सामने वाले साइड्स भी इक्वल है। मींस वी हैव टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच मीट्स BC एट D। एंगल A का बाइसेक्टर लीजिए, बनाइए, जो BC को D पे इंटरसेक्ट करे, D पे मिले। दिस पॉइंट इज D, राइट। अब हमें देखिए वही रूल है, ये ट्राइंगल और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। मैं इसको मार्क कर देता हूं कौन से दो ट्राइंगल आपको लेने हैं। ये तो ये ट्राइंगल और ये सेकेंड ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, कैसे देखिए।
Proof in triangle BAD and CAD. This one and this one. Angle B is equal to angle C given. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया, बाय कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। AD कॉमन है देखिए दोनों ट्राइंगल में, सो AD इज AD, राइट, कॉमन। तो दो एंगल और एक साइड आपको मिल चुका है। So you can write by this angle, and this side. Similarly, this angle and this angle and this side. Triangle BAD is congruent to triangle CAD by AAS rule. And now applying CPCT. So by CPCT, AB is equal to AC. और यही हमें प्रूव करना है। That's all for this question. क्वेश्चन ये है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इसका प्रीवियस थ्योरम था, उसमें ये था कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इसका हमें यूज इस पूरे चैप्टर में करना होगा, इस थ्योरम का यूज। दैट्स ऑल फॉर दिस थ्योरम नंबर 7.2। लेकिन इसको थ्योरम के नंबर से नहीं जानते, इसके स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो वेन एवर यू हैव टू कॉट इट, आपको इसका स्टेटमेंट ही लिखना चाहिए, दिस वन। Very important example number 4 in triangle ABC, the bisector AD of angle A। देखिए ट्राइंगल ABC है, दिस ट्राइंगल A, B and C। एंगल ए का बाइसेक्टर मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और BC पे परपेंडिकुलर है। इट इज गिवन परपेंडिकुलर टू साइड BC। टू प्रूव that this triangle must be an isosceles triangle means we have to prove that AB is equal to AC. A triangle is said to be isosceles if it has two equal sides. So say what is given. In the figure, angle BAD is equal to angle CAD. AD एंगल ए को BSC को बाइसेक्ट करती है, और ये एंगल ये D है 90 डिग्री बनाता है। देखो ADB और ADC, दैट इज 90 डिग्री। To prove AB is equal to AC, and we can see that the triangle ABC is an isosceles। अब हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन से ट्राइंगल? ABD, दिस वन, and ACD, this one। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD है, इक्वल दे रखा है, ये गिवन है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD एंड दिस इज गिवन। AD is equal to AD common. This side is common in the two triangles. AD is equal to AD. And one more thing, ADB is equal to ADC। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 और ये भी 90 है। दिस इज ऑल्सो गिवन। तो हमें एक एंगल, एक साइड और एक एंगल मिल चुका है। सो वी कैन से that triangle ABD is congruent to triangle ACD by angle side angle rule। Angle, this side and this angle, angle, this side and this angle। So by CPCT, AB is equal to AC। यही तो हमें प्रूव करना है। That's all। You can say proved।
A very important example, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. ये फिगर आपको गिवन है. शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी. मैंने ट्राइंगल ए बी सी बनाया है और इसके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ई और एफ में मिड पॉइंट्स बनाता हूं. देखिए ऐसे, ये पॉइंट ई है, वो ए बी का मिड पॉइंट है. सी ई को ई से ज्वाइन किया, और इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये एफ, ये मिड पॉइंट है ए सी का, बी एफ से ज्वाइन किया. और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो बी एफ, दिस वन, और ये सीई है, ये दोनों इक्वल है. जब आपको लगे कि दो एंगल्स या दो साइड्स इक्वल करनी है तो आप सीपीसीटी का यूज कर सकते हैं. सीपीसीटी का यूज तब हम करेंगे जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो. दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास चार रूल है: ए एस ए या ए एस, एस 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 और आर एच एस. इन चारों में से कोई एक रूल को हम अप्लाई करेंगे जो गिवन कंडीशन हमें दे रखी होगी. क्या गिवन है देखिए, इन द फिगर, इन मींस इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, और बीई इज इक्वल टू ई, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो बीई और ए इक्वल होगा, और ए एफ और सी एफ भी इक्वल होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है. तो ए ई विल बी इक्वल टू बीई, और ये ए सी का मिड पॉइंट है तो ए एफ विल बी इक्वल टू सी एफ. ये गिवन है. प्रूव ए बी और ए सी इक्वल, हमें प्रूव करना है. नो नो, दिस इज नॉट टू बी प्रूव, ये हमें प्रूव नहीं करना है. मैं चेंज करता हूं इसको. एंड वी हैव टू प्रूव बीई इज इक्वल टू सी एफ. ये देखिए, ये बीई इज इक्वल टू, सॉरी, बी एफ इज इक्वल टू, मैं फिर चेंज करूंगा इसको. मैं अभी चेंज करता हूं, बी एफ इज इक्वल टू सीई. ये प्रूव करना है. प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ए सीई, ए बी एफ, एक ट्राइंगल ये लिया और दूसरा लिया ए सी ई. फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है. एंगल ए और एंगल ए दोनों में ही कॉमन है. ये एंगल ए है, ए सी ई में भी कॉमन है, और ए बी एफ में भी एक कॉमन है. और थर्ड, ए एफ इज इक्वल टू ए ई. ये ये ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ये क्यों इक्वल है? देखिए, ए बी और ए सी इक्वल है, ये गिवन है. ए बी का हाफ करेंगे ए ई आएगा, और ए सी का हाफ करेंगे ए एफ आएगा, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है ए सी का. राइट. तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ए बी एफ at is congruent to triangle ACE by SAS rule, and by CPCT BF is equal to CE. और ये हमारा प्रूव हो गया. यही हमें प्रूव करना है, BF is equal to CE. That's all for this example number 5. Example number 6. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. देखिए, ये ट्राइंगल ABC isosceles ट्राइंगल है, और इसमें AB और AC इक्वल है. इट इज गिवन. इस BC पे दो पॉइंट है, एक D और एक E. ये भी गिवन है कि BE इज इक्वल टू CD. प्रूव ये करना है कि ये AD
और AE भी इक्वल होंगे। स्टार्ट करते हैं। Given in the figure means in triangle ABC, AB is equal to AC and BE is equal to CD. To prove AD is equal to A, ये प्रूव करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल ABE, देखिए ABE, ABE हम ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल। फिर से देखिए ABE, दिस ट्राइंगल एंड अदर ट्राइंगल कौन सा है? ACD, दिस वन। AB इज इक्वल टू AC गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्या बता सकते हो क्यों है? देखिए, किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती है, AB और AC इसमें इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है B, AC के अपोजिट एंगल B और AB के अपोजिट एंगल C है। रीजन लिखना होगा, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। और थर्ड बात देखिए, ऑल्सो BE इज इक्वल टू CD। मैं यहां से मार्क करता हूं BE, ये यहां से ये BE, और ये इक्वल है यहां से, देखिए इसके इक्वल CD, ये गिवन है। तो आपने देखा, ये साइड AB और इसमें ये AC इक्वल है। फिर आपने ये भी देखा कि ये जो एंगल है, वो इसके इक्वल है। और आपने ये भी देखा कि BE इक्वल टू CD। तो ट्राइंगल देखिए, AB एंगल BE, AC एंगल CD। So you can say triangle AB is congruent to triangle ACD। कौन सा रूल? बाई SAS रूल, बाई सिंप्लिसिटी। AD इज इक्वल टू AE, देखिए AE फर्स्ट थर्ड और AD फर्स्ट थर्ड, और ये हमारा प्रूफ। दैट्स ऑल फॉर दिस एग्जांपल नंबर 6। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इन द गिवन फिगर AB इज लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है AB, ये देखो। और P और Q AB के अपोजिट साइड में से एक वन साइड है, तो दूसरा AB के दूसरे साइड है। ये दो पॉइंट है, इस तरह से हैं दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB। देखिए, ये जो P का जो डिस्टेंस है A से और B से इक्वल है, मींस AP और BP इक्वल है, और ऐसे भी इक्वल है। Q का डिस्टेंस A से और B से इक्वल है, तो AQ इज इक्वल टू BQ, ये हमें गिवन है। देखिए क्या गिवन है, AP इज इक्वल टू BP एंड AQ इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है। और प्रूव ये करना है कि अगर लाइन सेगमेंट को जो P और Q को ज्वाइन करें, तो ये जो PQ है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये, बाइसेक्टर मींस ये प्रूव करेंगे कि ये C है, AB का मिड पॉइंट है। और नंबर 2, ये जो एक एंगल है ये 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। Given in the figure, line segment AB intersect PQ at C such that PA is equal to PB and QA is equal to QB। मैं आपको बता चुका हूं। और प्रूव क्या करना है कि PQ AB के परपेंडिकुलर है, और PQ एंड PQ बाइसेक्ट AB। बाइसेक्ट AB मींस एंगल ACB 9 डिग्री प्रूव करना है, और AC इज इक्वल टू BC प्रूव करना है। ये हमें इसमें प्रूव करना है।
इसके लिए हम देख रहे पहले ट्राइंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू लेंगे। पी ए क्यू मीन्स ये पी ए क्यू दिस कंप्लीट, और इधर से हमने लिया पी बी क्यू। ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे। देखिए ए पी इज इक्वल टू बी पी गिवन एंड ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी गिवन है। और एक साइड कॉमन नजर आ रही है आपको, विच वन? पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये पी क्यू दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। दैट इज वाई तो ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे हम एक एक चीज फाइंड आउट करेंगे, विच वन, की बाई सिपिसिटी ये जो एंगल है ये ए पी क्यू दैट इज इक्वल टू बी पी क्यू बाय सिपिसिटी। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, एपीसी इज इक्वल टू बीपीसी। अब दूसरा ट्राइंगल लिया कौन सा? पीएसी और पीबीसी। अब लिया हमने पीएसी और ये पीबीसी, ये एंगल इसके इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज लेंगे। एपी इज इक्वल टू बीपी है, देखो गिवन है। एपी क्यू इज इक्वल टू बीपी क्यू, और ये गिवन है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे एपी क्यू और बीपी क्यू या एपीसी और बीपीसी प्रूव कर चुके हैं, और एक साइड कॉमन है। पीसी इज इक्वल टू पीसी कॉमन, दिस वन कॉमन। तो देखो साइड, ये साइड, ये दूसरा साइड ये, और ये एंगल इसके इक्वल। तो ट्राइंगल पीएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीबीसी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय सिपिसिटी अब यूज करिए। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT। ये प्रूव करना था हमें, AC इज इक्वल टू BC। प्रूव कर चुके हैं एक पार्ट। एंड फॉर द फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल AC, एंगल ACP इज इक्वल टू BCP, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, लेकिन दोनों का सम 180 है। जब दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो एक 90 होगा और ये भी 90 होगा। एंगल ACB प्लस एंगल BCB दैट इज 180, फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज 180 डिग्री, क्योंकि BCP की जगह भी आप ACP लिख सकते हो। ACP प्लस ACP दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACP दैट इज 180 डिग्री। और एंगल ACB इज इक्वल टू 9 डिग्री। या आप यो भी कर सकते हो कि हमने पहला पार्ट भी प्रूव कर दिया। देखिए ये रहा, एक पार्ट हमने ये प्रूव किया, ये रहा। और एक पार्ट हमने ये प्रूव किया, सॉरी, दैट्स ऑल फॉर दिस एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8। P is a point equidistant from two lines L and M। देखिए दो लाइन है, this line is L and this line is M। ये दो लाइंस A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और एक कोई पॉइंट P है यहां पे, जो इस लाइन L से भी और M से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये गिवन है, और ये दोनों इक्वल भी है। तो ये बताना है
ये जो लाइन आ रही है एपी, ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें बताना है। Given line L and M intersect each other at A and let PB and PC is perpendicular to M and PB is perpendicular to L. It is given that PB is equal to PC. ये भी दे रखा है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। टू प्रूव एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, इस ट्राइंगल को और इस दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे, दिस वन एंड दिस वन। प्रूफ इन ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल पी ए सी, पी बी इज इक्वल टू पी सी गिवन। एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी ए इज 90 डिग्री, ये भी गिवन है। जब डिस्टेंस की बात आती है तो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहते हैं, दैट इज व्हाई दिस एंगल इज 90 डिग्री। और एक चीज और इक्वल है, कौन सा? ए पी ए इज इक्वल टू पी ए, दिस इज कॉमन। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में पी ए कॉमन है, देखो क्या इक्वल है, ये 90 है और ये भी 90 है। ये पी सी और पी बी दो इक्वल है, और ये 90 और ये 90 है, और ये कॉमन है, राइट। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो देखो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया पी ए, ये भी हाइपोटेन्यूज, और एक साइड इक्वल, एक ये राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूज। सो ट्राइंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ए सी बाई आर एच एस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो ये तो साइड हुआ, ये राइट एंगल हुआ, और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो नाउ बाय विच रूल? By right angle, hypotenuse and side rule, the two triangles are congruent. So by CPCT, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, और यही हमें प्रूव करना था। दैट्स ऑल। थैंक्स। थैंक यू।